شہزاد سب سے بھائی پہلے آپ تمام صحافی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک مختصر نوٹس پر آپ لوگ ہماری خدمت میں حاضر ہوئے، سر بھائی آپ کا سر آ رہا ہے. کیونکہ آپ تمام صحافی برادری اور پورے بلوچستان کے عوام کو معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں ہمارے ایک خاتون پی جی ڈاکٹر پر دن دہاڑے تیزاب پھینکی گئی، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. معزز صحافی حضرات، اسی بابت سے ہم لوگوں نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس طلب کی. آج کا یہ پریس کانفرنس ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن بلوچستان، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کوئٹہ زون، الائڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا مشترکہ پریس کانفرنس ہے. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے ڈاکٹر شعیب صاحب جو جنرل سیکرٹری ہے، الائڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے صوبائی صدر فضل کاکڑ صاحب موجود ہیں. معزز صحافی حضرات، جیسے کہ پورے بلوچستان کو یہ معلوم ہے کہ دن دہاڑے جو حملہ کیا گیا بحیثیت بلوچستانی، بحیثیت بلوچ، بحیثیت پشتون، ہم محض اس واقعے کو ایک واقعہ نہیں سمجھتے، بلکہ یہ قومی سانحہ ہے، یہ قومی المیہ ہے جو بلوچ و پشتون کے روایات، بلوچ و پشتون کی شناخت، ثقافت اور معاشرتی اقدار پر حملہ ہے. معزز صحافی حضرات، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابھی تک جو غیر سنجیدہ حکومت جہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ ہماری باتیں سنتے، وہ ہمارے خدشات اور تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کرتے، لیکن میرے خیال میں بلوچستان کے عوام کی جان سے زیادہ ان کو بجٹ کی فکر ہے. بلوچستان کے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس کے تحفظات سننے کے بجائے شاید وہ کرپشن کی رائے ہموار کرنے میں مصروف عمل ہیں. بحیثیت ڈاکٹر، بحیثیت بلوچستانی، ہم حکومت بلوچستان کی اس غیر سنجیدگی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہیں اور یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ احتجاج جو سول اسپتال یا کوئٹہ تک محدود تھی لیکن ہمیں نہیں سنایا گیا، تو ہم لوگوں نے اس کو وسیع کر کے پورے بلوچستان تک وسیع کر دیا ہے. اگر پھر بھی یہ اپنی عصبی روایات خاموشی پر جو ہے نا چلتے رہے تو انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کے لیول تک ہم لوگ اس کو وسیع کر لیں گے. معزز صحافی حضرات، جیسے کہ اب آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ اسپتالوں میں ہمارے نہ ڈاکٹرز محفوظ ہے، ہمارے نہ نرسز محفوظ ہے، ہمارے نہ کلرکس محفوظ ہے، ہمارے نہ پیرامیڈکس کے دوست محفوظ ہے. ہمارے لیے جان بوجھ کے ایک ایسا ماحول بنایا گیا ہے کہ ڈاکٹروں کو، نرسز کو، پیرامیڈکس کو، کلرکس کو ہراساں کیا جائے، ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے اور حکومت بلوچستان مسلسل غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے. قطعاً اس طرح نہیں ہے. اگر آج یہ واقعہ ہمارے ایک بہن کے ساتھ ہوئی ہے تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ یہ پہلا اور آخری واقعہ ہو. بصورت دیگر ہماری خاموشی ہم سمجھتے ہیں کہ کل کو پھر ہمارے کسی بہن کو یہ ٹارگٹ کریں گے. اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان جیسے واقعات جو پہلے آئے روز ہمارے ساتھ رونما ہوئے ہیں، لیکن جو انتہائی شرمناک عمل ہمارے بہن ڈاکٹر مانور صاحبہ کے ساتھ ہوئی ہے، میں کہتا ہوں اس کی تمام تر تحقیقات ہونی چاہیے، اس کی تمام تر حقائق عوام کے سامنے لانے چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون عناصر ہے جو خواتین کو تعلیم، ترقی، روزگار اور حق آزادی سے محروم رکھنا چاہتے ہیں. وہ کون عناصر ہے جو اس طرح اسپتالوں میں
हमारे मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाज़मीन को हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें हम वाज़ह करना चाहते हैं कि अब मज़ीद हुकूमती गफलत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मज़ीद जिस हेल्थ सेक्रेटरी को उन लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट का सरबराह बनाया गया है, हम यही समझते हैं जिसको इस वाक़े का हम ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि उसकी मुसलसल गफलत की वजह से, उसकी मुसलसल नाअहली की वजह से आए रोज़ हमारे साथ इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। तो हम बहैसियत डॉक्टर, बहैसियत क्लर्क्स और बहैसियत जो हमारे पैरामेडिक्स के दोस्त हैं, ये वाज़ह करना चाहते हैं कि हमारे डॉक्टरों को, हम सब को जो है ना तहफ़्फ़ुज़, जहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हम सब को एक आज़ादाना माहौल दिया जाए ताकि अस्पतालों में हम खुद को महफूज समझें। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हमने पहले भी अपने मुतालबात आला हुकाम को भेजे हैं। अभी आप दोस्तों के तवस्सुल से हम फिर से उनको वाज़ह करना चाहते हैं कि हमारे मुतालबात जायज़ है। हमारे मुतालबात कुछ इस तरह के हैं कि जिनमें आपकी गैर ज़िम्मेदारी, गफलत और नाअहली भी शामिल है। तो हम ये वाज़ह करना चाहते हैं कि मौजूदा हेल्थ सेक्रेटरी, मौजूदा यहाँ की एमएस, सिविल अस्पताल की एमएस, इनको बरतरफ करके इनके ख़िलाफ़ तहकीकात होनी चाहिए। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि ये जो वाक़या रूनुमा हुआ, लाज़मी अभी तक हमें कुछ इस तरह के बयानात नहीं मिले हैं या इस तरह के हमें यकीन दहानी नहीं कराई गई है कि इसके पीछे कौन से अनासिर है। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि एक जुडिशल कमीशन बनाई जाए ताकि उन अनासिर का नाम सामने आ जाए। वो लोग जिनको पर्दे के पीछे रखना चाहते हैं, उनको बेनकाब किया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है हमें तहफ़्फ़ुज़ात है वो सिक्योरिटी के हवाले से है। तो हम यही समझते हैं कि जिस तरह 2022 में पंजाब हुकूमत ने एक एक्ट पास की थी, उसी तर्ज का एक एक्ट पास करके हमें एक महफूज माहौल दिया जाए। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आप लोगों की तवज्जो से मैं ये वाज़ह करना चाहता हूँ, चूँकि हमारे एमरजेंसी सर्विसेज जो अपने रूटीन के हिसाब से कंटिन्यू है और इलेक्टिव सर्विसेज से हम लोगों ने विथड्रॉ किए हैं, तो आवाम को हम लोग कभी सफ़र करने नहीं देंगे। अभी तक हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो आवाम को चेकअप कर रहे हैं, वो आवाम को जो है ना इलाज और मुआवजे से महरूम रखना नहीं चाहते हैं। हमारे मुख्तलिफ वार्ड्स में इस वक्त भी मरीज़ों को चेकअप किया जा रहा है। इसी मुनासबत से मैं वाज़ा करना चाहता हूँ कि आप भी आवाम तक ये हमारा पैगाम पहुँचाने की कोशिश करें कि कोयटा के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें हमारे जितने भी डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स, पीएमए के जो डॉक्टर्स प्राइवेट क्लिनिक कर रहे हैं, वो आज से इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी एहतिजाज जारी है, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज और मुआवजे की वहाँ पे चेकअप कर लेंगे। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान इस वक्त जो लाएमल पेश करना चाह रही है, इससे पहले हम वाज़ह भी करना चाहते हैं कि हुकूमत हमारी बातों पर संजीदगी का मुजाहिरा करे, हमारी बातों को एक ऐसी तरफ न धकेलें कि हम मज़ीद शिद्दत के साथ अपने एहतिजाज को वसी कर लें। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, चूँकि अब तक हमारे पास कोई भी बाइख्तियार कारकुन पॉलिटिकल पार्टी से अभी तक भी नहीं आया है, नहीं हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से कोई आया है, तो हम ये वाज़ह करना चाहते हैं कि हम किसी सूरत खामोश नहीं रह सकते। इस वजह से मुश्तरका फ़ैसला हुआ है कि 12 जून बरोज़ जुम्मा 2 बजे शेख ज़ैद हॉस्पिटल से प्रेस क्लब तक मुजाहिरा किया जाएगा। रैली की शक्ल में प्रेस क्लब के सामने हम लोग मुजाहिरा करेंगे। तो इसी मुनासबत से मैं तमाम बलूचिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज़, वकला की तमाम तंजीमें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ग्रैंड अलायंस बलूचिस्तान, सोशल एक्टिविस्ट्स और हेल्थ के तमाम एसोसिएशन से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो लोग हमारे इस मुजाहरे में भरपूर
शिरकत करें। आप तमाम दोस्तों को शुक्रिया। अंजुमन ताजरान से भी रिक्वेस्ट करते हैं। कैमरे के सामने नहीं। इस वक्त तक हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा मुज़ाकरात सामने नहीं है। हमारा इसमें मुतालबा बहुत मुख्तसर सा है। जो दो इंतज़ामी ज़िम्मेदारान तो हमें समझ आते हैं जो अकल के मुताबिक एक सिविल अस्पताल के अंदर वाक़या हुआ, उसका इंतज़ामी सरबरा MS है, और जो हेल्थ का इंतज़ामी सरबरा है सेक्रेटरी हेल्थ, ये दो बराह रास्त इनकी गफलत जो हमारे सामने हमें जो दिखाई दे रही है, हम कह रहे हैं इनको जुडिशल कमीशन के प्रोसेस से गुजार लें। एक फ़र्द इसका फैसला न करे, कानून के कटेरे में ला के खड़ा कर दिया जाए। अगर कानून इनको बरी ज़िम्मा ठहराती है 120 में, अगर कानून इनको ज़िम्मेदार ठहराती है, ये नहीं होगा कि वज़ीर आला के मुताबिक अगर वो समझते हैं कि इनके अफसर ज़िम्मेदार नहीं हैं, हम ये कतई मानने को तैयार नहीं। ये अकल के खिलाफ। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई अफसर गलती करता है तो पहले उसको मुअत्तल किया जाता है, फिर इंक्वायरी। यहाँ अलमिया ये है, ये सब नहीं। पहली बात। दूसरा, अस्पतालों के हवाले से हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने OPD सर्विसेज बंद कर दी, हम विड्रा कर चुके हैं। हमारे वार्ड्स के अंदर जितनी भी इमरजेंसी से एडमिशन्स हो रही हैं वो चल रही है, तो सुबह उन वार्ड्स के अंदर भी हमारे डॉक्टर्स देख रहे हैं पेशेंट्स को। इसके अलावा इससे आगे बढ़कर आवाम की सहूलियत के लिए, ताकि उनको तकलीफ न पहुंचे, हमने डॉक्टरों की पूरी लिस्ट बनाई है। तमाम हॉस्पिटल में डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के जो जितने भी यंग डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी फ्री ऑफ द कास्ट सर्विसेज देने का ऐलान कर दिया है। ये सारे काम आपको प्रोवाइड करेंगे, इनका PDF में भी प्रोवाइड करेंगे, और ये हम आप सब के लिए हमने इनकी लिस्ट भी बनाई है। इनके हॉस्पिटल्स का भी बताया, इनके स्पेशलिटीज़ का भी बता दिया कि ये सब को आप आवाम तक पहुंचा दें, ताकि जिनको अगर सुबह के वक्त खुदा न खास्ता OPD सर्विसेज चाहिए थे और वो ना मिल सकी, वो प्राइवेट में जाके फ्री ऑफ द कास्ट अपना इलाज करवा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जरा बता दें, आपकी जिस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये तलबा है कि तहकीकात किया जाए, तहकीकात को पसपर्दा को दे, कौन से वो दे पसपर्दा दे, एक जरा बता दें। दूसरा ये कि आप लोगों की कॉन्फ्रेंस से लगता है कि आप लोगों ने 2 बंदे को टारगेट किया, एक सेक्रेटरी है, एक MS को, तो क्या उनकी क्या गलती है तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं? हम तहकीकात का मुतालबा इसीलिए कर रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं। हमें पता होता तो हम कहते फ़िलहाल शख्स, फ़िलहाल बंदा ज़िम्मेदार है, फ़िलहाल तंजीम ज़िम्मेदार है। हमें तो पता नहीं है। हमें तो सिर्फ ये दिखाया गया एक बंदा है, उसको मार दिया गया। उसके क्या मोटिव्स थे, मुहर्रिकात क्या थे, हमें पता नहीं। हमें पता होता तो ये मसला ही हल हो जाता। डॉक्टर साहब सुन ले आज सुनने में आया, मैं बराह रास्त नहीं सुना, आप मीडिया वाले दोस्तों के DIG साहब ने एक अजीब सा इल्ज़ाम लगा दिया। ये रिश्ता भेजा है, उन्होंने इनकार किया, इसमें ये तो मुझे मतलब ये माशरती पस्ती का वो हमारा मयार आ चुका है। खुदा न खास्ता इतना बड़ा सानिया हुआ, उस दिन आप बता देते, उससे पहले आप बता देते जब ये मामला था, इतना बड़ा ड्रामा रचाने से क्या। लिहाजा जब तक जुडिशल कमीशन नहीं होगी, जुडिशल इंक्वायरी नहीं होगी, हमारा किसी से पर्सनल नहीं है कि 2 बंदों को पकड़ा है। मेरे घर में मसला होता है, घर का सरबराह मैं हूँ, तहकीकात तो मुझ पे होंगी या नहीं। हम तो ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप एडिशनल सेक्रेटरी को भी डालो, स्पेशल सेक्रेटरी को भी डालो, DMS को भी डालो, उसको भी डालो। हम कह रहे 2 इंसानी सरबराह ने, उनका मामला हुआ है, जुडिशल इंक्वायरी कहती है बरी ज़िम्मा है। अगर उसके बाद हमने कुछ कहा, आप कहिए पर्सनल। हम तो सिंपल एक बात कर रहे हैं जो हमेशा रूल ऑफ लॉ है। जिस भी महकमे के अंदर गफलत बरती जाती है, उनके इंतजामी सरबराहान को कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है, इंक्वायरी इनिशिएट होती है, फैसला फैसला आएगा वो इनके हक में होगा। हो सकता है इनको बचाने की कोशिश की जो अभी हो रही है। अभी तो वो मसला ये है कि वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया। हम तो कह रहे हैं बात को सिंपल किया जाए। वहाँ से फीमेल की पूरी फैमिली की तरफ से DIG के इस बयान को, इसकी शदीद मजम्मत की गई है।
हम यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान और जितनी भी तंजीमें हमारे साथ बैठी इन सब की तरफ से इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये गलाजत है, ये गलत बात है। हक़ाइक़ को फिर अब हम मशकूक हो जाते हैं, हक़ाइक़ को छुपाने की वो कोशिश की जाए। इस पे मैं बड़ा मुख्तसर सी बात है, अभी बार बार चूँकि इन दो सरबराहान का नाम आ रहा है, मेडिकल सुप्रीडेंट का और सेक्रेटरी का। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सबको पता है, इसके नाम से एक ड्रामा रचाया गया था पिछले साल। उस वक्त हमने उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और तमाम इंतज़ामी उमूर के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे डीन्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, एमएसएस हैं, उन सबको हमने लेटर्स लिखे कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, इसमें प्राइवेसी ब्रीच का खतरा है। और उसका ये पहला रिजल्ट था। शाज़िया अख्मलबाग ने इस वाक़े को उजागर करने की बहैसियत फीमेल, उसने अपने आप को ऐसा एक ज़िम्मेदार सोसाइटी का फ़र्द समझकर इस बात के वाक़े की मज़म्मत की, उसके ख़िलाफ़ बोलने लगा। तो अब ये दो डेस्क पे मालूमात छुपी हुई है, CGL के डेस्क पे और MS के डेस्क पे। अब इन दोनों से ये आउट हो चुका है। जब आउट हो चुका है तो इसका मतलब है कुछ तो है जिसकी पल्ला नहीं है, दाल में कुछ काला है जिसको छुपाना है। तो इस वजह से इसके हवाले से तो मुझे पता नहीं, लेकिन चूंकि लास्ट नाइट उनकी नाइट ड्यूटी थी, उनको चूंकि ये थ्रेट्स मौसूल हो रहे थे, उनकी सारी फैमिली और कुछ डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हुए थे, वो पूरी रात बेचारे उनके प्रोटेक्शन के लिए बैठे थे। इतना बड़ा सामिया होने के बावजूद भी सेवा अस्पताल की सिक्योरिटी आप सबके सामने। कमेंट कीजिएगा बहुत, और उसके साथ ये उनकी जो अटेंडेंस शीट है वो लिखी है कि किसने कराई है नंबर फर्स्ट, और उसके साथ ये भी कि 70 दिनों में सिर्फ 7 दिन हाजिर नहीं, तो डॉक्टर्स करते आ रहे हैं। और आपको आपसे कैसे डिपेंड है? सही, आई एग्री। वो 7 दिन हाजिर रही है, तो उसको शोकाज होना चाहिए था। शोकाज कौन करता है? या MS करेगा या सेक्रेटरी करेगा, किसी ने शोकाज नहीं किया। अभी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट है PGMI, ये तमाम PGs की ट्रेनिंग को मॉनिटर करती है। इसने लेटर निकाला है, वो लेटर आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। आज 10 जून, 13 जून को एक सेशन मुनक्किद होगा जिसमें आपको AI पे अटेंडेंस कैसे लगाते हैं आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। AI का ये जो ड्रामा है, इसमें बहुत सारे फ्लाज अभी भी चल रहे हैं। AI फंक्शनल नहीं है, न ये AI के ज़रिए से वो कर रहे हैं। ये तो वो तमाशा है जो ये लोग कर रहे हैं, जो अभी मसला ये नहीं है। अगर वो गैर हाजिर है उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करो ना, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी तो कथन इजाज़त नहीं है कि आप उसकी प्राइवेसी, उसका घर का एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसकी तस्वीर पब्लिक कर। ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट तो नहीं है ना, ये तो प्राइवेसी डॉक्यूमेंट है एक इंडिविजुअल के, एक मुलाजिम का। ये प्राइवेसी डॉक्यूमेंट छुपा होता है फाइल के अंदर, ये तो पब्लिक नहीं किया जा सकता। और जिन डेस्क पे मौजूद है, जहाँ इस इंफॉर्मेशन को लीक करने का इख्तियार, जिनके कब्जे में ये इख्तियार है, वही मुलजिम है। और वो इस चीज़ को करके ख़ुद के ऊपर जुर्म साबित कर, हमें लगता है कि वो इस जुर्म में शायद बराह रास्त पूरा। भाई साहब कल जो है सीनियर डॉक्टर्स ने, टीचिंग स्टाफ के डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि YDA ने जो है उनको सेक्रेटरी साहब को भी सुनना चाहिए, पहले दिन किया, उन्होंने उनका रवैया जो है सही नहीं है, वो इस बारे में। अच्छा, 4 महीने पहले पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की पूरी टीम सेक्रेटरीट के पास चली गई। सेक्रेटरी साहब, सिक्योरिटी के मसले चल रहे हैं, बहुत सारे मसले सिक्योरिटी के। ये पंजाब एक बिल लेकर आई है, काइंडली आप इसको स्टडी करें, जो चीज़ें हमारे बलूचिस्तान के मुआफिक है वो ले लेते हैं, जो नहीं है उसमें हम कुछ सजेशन देंगे। सेक्रेटरी साहब ये बिल उठा कैसे कहेंगे, कहते मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। पहली बात, ईद के 3 दिन बाद बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के ऊपर हमला होता है सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से, उनको काफ़ी चोटें आ जाती है, सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार होता है। उसके बाद इस मसले को लेकर सिविल अस्पताल में मोटरसाइकिल चोरी होता है, कभी लैपटॉप चोरी होता है, बहुत छोटे छोटे मसाइल। ये सारे हमारे डॉक्टर्स पिछले 15 दिन से
सेक्रेटरी हेल्थ के ऑफिस जा रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब को भाई कहें कि बैठ जाएं दफ्तर में ताकि हम आ जाएं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं। उनके पीएस को कॉल करते हैं कि भाई सेक्रेटरी साहब को कहें कि टाइम दे दे, मसाइल है सिक्योरिटी के। पीएस साहब कहते हैं कभी एक मीटिंग में बिजी हैं, कभी दूसरे मीटिंग में बिजी हैं, कभी इस शहर में, कभी उस शहर में। नाम नहीं बताते, जगह नहीं बताते। जो हमारे दोस्तों ने बताया कि सरीना होटल में बैठे हो या जिना टाउन में कैंप ऑफिस लगाया है जो डिक्लेयर नहीं किया है। अगर आपने कैंप ऑफिस बनाया है, उसको डिक्लेयर किया तो पब्लिक को उधर जाना चाहिए। अगर आपने सरीना को ही डिक्लेयर किया तो डिक्लेयर कर दे ताकि हम वहाँ जाएँ, सेक्रेटरीट ना जाए। सेक्रेटरीट पिछले 15 दिनों से मतवाफिर जा रहे हैं, तो ये शख्स वहाँ मौजूद नहीं था। तो ये तमाम मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से जब DIG साहब इधर आए हैं, तमाम डॉक्टर गम में है, गुस्से में है। और DIG साहब को पैगाम भी भेजा, सेक्रेटरी हेल्थ साहब को अपने साथ न लाएं, ये वो मौका नहीं है। चूँकि इस वक्त हम समझते हैं इनकी गफलत है इसमें, चूँकि इनके सबऑर्डिनेट्स की गफलत है इसमें, इसलिए इस शख्स को इस वक्त यहाँ पे न लाया जाए। सेक्रेटरी हेल्थ को मशवरा भी दिया गया उनके डॉक्टर्स और कुछ डॉक्टर्स की तरफ से कि इस वक्त आप वहाँ इस कंडीशन में न जाएं। लोगों का गम और गुस्सा आपके ऊपर भी है। लोग समझ रहे हैं कि आप बराह रास्त मुलविस है इस वाक़े में, चूँकि पिछले कई दिनों से और पिछले कई महीनों से सिक्योरिटी के मसले चल रहे हैं और लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अवेलेबल नहीं है। लेकिन सेक्रेटरी साहब सीना तान के आते हैं। फिर कुछ अखलाकियात होनी चाहिए, कुछ एथिक्स होनी चाहिए। आप एक सेक्रेटरी हैं, जब कोई मातम होता है हर बंदा जाके कम से कम वो गम का वो सूरत तो बना लेता है। वो यहाँ पे आके सीना, एक तो चोरी, सीना जोरी और दीदा दिलेरी के साथ हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो इस हालत में जब सारे डॉक्टर कम्युनिटी, ऐसा वाक़या हमारी तारीख़ में नहीं हुआ। हमने जो वाक़यात बहुत सुने, रोज़ाना कोई आता है हमारी बहनों को, हमारी फीमेल डॉक्टर्स को, कोई लात मारता है, कोई बाल खींचता है, कोई धक्के देता है, ये रोज़ का मामला है। हम उस पे हमने ये एजिटेशन या ये रिएक्शन नहीं था, लेकिन ये वाक़या इसने सबको झंझोड़ दिया। तो इस वजह से जब वो इन हालात के अंदर आए और ये इस एटीट्यूड के साथ आए तो फिर किसी से बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो ज़ाहिर है उन्होंने किसी ने गाली किसी ने नहीं दी, उनके खिलाफ नारेबाजी की है, उनके खिलाफ बिल्कुल बोला कि ये शख्स यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नहीं बैठेगा, न इसका कोई किरदार रहा है न, और ये इस वाक़े में जब हम इसको मुलविस समझ रहे हैं, आप इसको ला के मेरे साथ बैठा के आप इसको बेकसूर साबित करना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये ज़रा बता दें, आपने कहा करना वहाँ और हम वार्ड की यहाँ पे सिक्योरिटी के मसले चल रहे हैं। मसला ये है कि अगर ये अस्पताल शहर का मेन आपका मरकज़ है कोयटा के मेन बड़े सबसे बड़े अस्पताल के अंदर दिन दहाड़े 12 बजे कोई महफूज नहीं है, तो आप खुद सोचे कमर की खारेज के BHU में कोई फीमेल कैसे महफूज हो सकती, कोई मेल कैसे महफूज हो सकता है, कोई नसीराबाद, कच्ची, शोब, लोरलाई, इन इलाकों में BHUs में पहाड़ों में जाके हमारी मेल फीमेल सब ड्यूटी करती, तो वहाँ पे कैसे महफूज रह सकता है। ये तो एक सिम्बॉलिकल वो है कि गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है सिक्योरिटी देने में, तो लिहाजा सिक्योरिटी पे भी बात उस वक्त हम करेंगे जब जिम्मेदार आप तयन करोगे। हर वाक़े का देखें, ये नहीं वज़ीर आला साहब कह रहे हैं शट एंड क्लोज, चलो आज एक पे तेज़ाब फेंका, कल किसी को गोली मार दी उसको भी आप मार दोगे, फिर किसी ने कुछ किया आप उसको भी मार दोगे, परसों किसी ने किया उसको भी आप मार दोगे। जिम्मेदार तो स्टेट तो नहीं रहा ना। तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन किधर गया? कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 42A, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 9, 14, 23, 24, ये सब क्या है, किसने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है? सब क्यों खामोश है? सर ये तो सवाल आप उनसे करें, वो इंसानी सरबराह है, वो उसकी खामोशी तो हमें भी गाई जा रही है, छुपाने की कोशिश की जा रही है, या तो उनको लिया तो सब नॉर्मल वाक़या, उनके लिए बड़ा वाक़या। थोड़ा सा जब तक हम काम कर रहे हैं बोलने देंगे बिल्कुल हमने तस्दीक कराई है और उन्होंने पहले दिन भी वो इनकार किया। इससे पहले मिनिस्टर हेल्थ की तरफ से भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट तो दोस्तों की नज़र से गुजरा था कि वो किसी और चीज़ का वाला कर रहे हैं 4 मंथ से कोई वो कुछ और कह रहे हैं। सही है, जहाँ पे लग गया तो क्या हो गया? बयानात में तजाद है। अभी बाबर यूसुफ जी कह रहा है, DIG साहब कहता है ये सर आपकी तरफ अभी आप 20-50 बाबर यूसुफ जी कह रहे हैं ये अफगानिस्तान की तरफ हमने मार दिया। बनाओ आप। मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये 4 महीने से हरासमेंट कर रहा था। DIG साहब कह रहे हैं कि इसने रिश्ता। 4 बातें आप बताओ मैं क्या करूँ, डॉक्टर क्या करूँ?
तो जुडिशल इंक्वायरी देखिए, केस में कोई इतना ये एक जनरल रूल ऑफ लॉ है। 2 बंदे हैं, 4 बंदे, अगर आपको लगता है कि 10 बंदों को इस इंक्वायरी में होना चाहिए, डाल। हमें तो 2 का लगता है। अगर आपको लगता है कि वज़ीर आला साहब भी डल जाए, होम सेक्रेटरी को भी डालना चाहिए, तो आप लोग तय करें। हमें तो इन 2 का लगता है कि इल्ज़ामी सरबराह ने इनकी गफलत है। अगर गफलत नहीं निकल आती है, आप इनको बरी जिम्मा करें। हम तो मुख्तसर सी बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो सिविल हॉस्पिटल की जो सरकारी लॉन्ड्री है उसका गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर जो प्राइवेट कपड़े हॉस्पिटल यहाँ पे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो सरकारी लॉन्ड्री है उसका गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहा है। सर मेरे तो इल्म में नहीं है, लेकिन ये सवाल आप इंतजामिया से पूछ, हो सकता है। ये चीज़ें अभी तो लावारिस है ना, और कोई आता है जाता है, सिलसिले तो चल रहे हैं। ऐसे भी वाक़यात हुए हैं। अभी वो बताते हुए शर्म आती है। बंदे ने आके किसी को इंजेक्शन मार दिया, वो फैमिली पूछ रही किसने कहा, कहते डॉक्टर ने कहा। बंदा निकल गया, डॉक्टर को पकड़ा फैमिली, भाई बंदे को देखो। बंदा आ गया, कहते क्या हुआ, कहता आपने इंजेक्शन बोला। तो मैंने कब बोला? ये सिक्योरिटी के हालात है, बोल नहीं सकते हैं, बर्बादी है वो। तो मैंने कहा ये रोज़मर्रा के मामलात है, धक्के मुक्की है, तो हमारा रोज़ का मामूल था। ठीक है, बिजली नहीं है, डॉक्टर को मारो। पंखा ख़राब है, डॉक्टर को मारो। दवाई नहीं है, डॉक्टर को मारो। MRI ख़राब है, डॉक्टर को मारो। टेस्ट नहीं हो रहा है, डॉक्टर को मारो। ये देखिए, एक अरसे से जो हम शुरू से कह रहे कि एक बयानिया बनाया जा रहा था। जब हमने आज से कोई साल पहले, 1.5 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस वक्त मैंने कहा था एक बयानिया जनरेट किया जा रहा है डॉक्टर के खिलाफ, डॉक्टर के खिलाफ, डॉक्टर के खिलाफ। आज ये उसका रिएक्शन है। दिन दहाड़े किस तरीके से जो है ना बेदखली के साथ जफर